Okay. So in the last class, we were discussing about how to prove two triangles are similar. Uh, we have studied different techniques to prove the triangles are congruent. That's already we have discussed in the last year in ninth class. Then in the beginning of this chapter, we have seen what is congruent figures and what is similar figures. Then we have discussed about the similarity of a triangle. There we have discussed two important theorems, very, very important theorems. One is basic proportionality theorem and the next one is इसका converse. तो उसका था ये complete exercise उसका ही था 6.1 I think 6.2 exercise पूरा उसका था वही हमने पूरा कर दिया. Now we are starting the chapter means the similarity of triangles. So उसमें से एक हमने already देख चुका है कल. किसी का भी प्रूफ हमें नहीं चाहिए. हमने यही देखा है कि जैसे हाउ टू प्रूव टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो एस्टरडे हमने देखा ए क्राइटेरिया. ए क्राइटेरिया मतलब इफ इन ए ट्रायंगल इफ टू एंगल्स आर सेम देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. क्योंकि टू एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं. There is no other option. So that is one criteria we have seen, A criteria. So that means if in a triangle, if two angles of a triangle is equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. Then another criteria, yes criteria. So नाम से पता चलेगा yes. That means the sides of side. That means if the three sides of one triangle is proportional, sides हमेशा similar triangle का specialty ऐसे है कि sides proportional. Similar जो भी similar figures का हमेशा कोई भी figure हो उसका angles equals sides proportional. ठीक है. एनी फिगर होने दो, एनी फिगर, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलैटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जो भी फिगर, जो भी पॉलीगन सिमिलर है तो उसका एंगल्स इक्वल होना चाहिए. साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं. साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए. सो साइड क्राइटेरिया मतलब if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, that means all the three sides are proportional, that means in the same ratio, so automatically corresponding angles are equally आएगा, hence the triangles are similar. ठीक है. क्योंकि आपने 9th क्लास में एक थियरी पढ़ाया किया था, जो बड़ा साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, छोटा साइड का ऑपोजिट एंगल छोटा होगा. सो दोनों साइड इक्वल है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वली होगा. सो एनीवे यस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मतलब इफ इन टू ट्रायंगल्स द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू मींस और प्रोपोर्शनल टू और इन द सेम रेशियो of the sides of the other triangle, then that triangles are similar. Then another criteria, yes criteria. इसका प्रूफ नहीं चाहिए इसलिए मैं प्रूफ नहीं बता रहा आपको. जिसको प्रूफ के बारे में जानकारी चाहिए तो टेक्स्ट बुक देख लो, उसमें से प्रूफ भी दिया है. yes क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड. उसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड मतलब दो साइड उसके बीच में एंगल. ऐसे कोई भी साइड कोई भी एंगल नहीं होगा. साइड एंगल साइड मतलब दो साइड एंड जो एंगल है ना वो एंगल वो दोनों साइड का बीच में होना चाहिए, इसलिए वो स्पेसिफिकली साइड एंगल साइड. उसका मतलब if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, then the sides including that angles are proportional.
कोई भी दो साइड नहीं, वो एंगल के लिए दो साइड आते हैं, वो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है. So there are three criteria we have discussed. Three criteria. One is A criteria, then yes, yes, yes criteria, then yes, Yes, yes criteria. These are the three criteria which we commonly used to prove two triangles are similar. similar. सिर्फ वही नाम ही याद रख देना, जैसे पूरा थियोरी ऐसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नाम से वो पता चले ए दैट मीन्स टू एंगल. सो ये भी मन में रखना, एंगल से तो हमेशा इक्वल, साइड से तो प्रोपोर्शनल. सो ए मतलब इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Now yes, 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 if three sides of one triangle is proportional to the three sides of the another triangle, then the two triangles are similar. Proportional मतलब same ratio होना चाहिए. Then yes, yes, that means one angle is equal, then उस angle form करने के लिए दो side होगा, वो दोनों side proportional होना चाहिए, then that two triangles are similar. Okay. So these are the three criteria which we are going to use to prove two triangles are similar. A criteria, yes, yes, yes criteria, and yes, yes criteria. Now, we'll go to the exercise because there is nothing more to discuss there. Different pairs of triangles are given there. 1 2 3 4 4 pairs. अभी और ज़्यादा है, पहले इतना करेंगे, बाद में नेक्स्ट करेंगे. 1 2 3 4. Okay. So tell me these triangles are similar or not. सिमिलर है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है. ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए 60 इधर पी 60, बी 80 इधर क्यू 80. सो ऑटोमेटिकली दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल है. दैट मींस इट इज ए क्राइटेरिया सिमिलर है. सो जब मैंने बोला जब कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं वैसे इधर भी जो लिखने का जो क्या बोलते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पोजीशन, जैसे आपने ट्रायंगल ए बी सी बोला, सिमिलर का सिंबल ऐसे ही है, सिमिलर, दिस इज अ सिंबल फॉर सिमिलर. ओके, सिंबल फॉर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंस के सिंबल क्या था, दिस इज द सिंबल फॉर, this is the symbol for congruent. But this is a symbol, just I say symbol है, this is a symbol for similar. Okay, similar. Okay. Now triangle ABC, yes, it is similar to triangle. So corresponding angles लिखना, ये के corresponding P दा, B के corresponding Q दा, so it will P Q R. ऐसे P R Q ऐसे कुछ भी लिखेंगे तो नहीं चलेगा. तो करेक्ट जो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड सब उसी में से आना. अभी तो इसमें से देख के हम बता सकते हैं कि ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर, ए सी एंड पी आर, ऐसे देख के बताना पड़ते हैं. सो इट इज क्राइटेरिया इज ए क्राइटेरिया. नाउ सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर कुछ एंगल्स वगैरह कुछ दिया है नहीं. So हमारे पास तीन क्राइटेरिया, वन इज ए यस 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 से यस, कोई एंगल वाला कुछ नहीं दिया. तभी साइड्स देखना प्रोपोर्शनल है क्या. देखो इधर तो हाइपोटेन्यूज जैसे यार, देखो ये सी इधर 3, अब देखेंगे तो ये सी
by PQ. AC by PQ, it is 3 by 6. Same, देखो देख लेना, AC by PQ. AC by PQ is 3 by 6, which is equal to 1 by 2. AB by QR. AB by QR. 2 by 4, which is 1 by 2. BC by PR, which is 2.5 divided by 5, which is 1 by 2. So 3 sides proportional hai. So triangle. Yes, sir. Angle, sir. Correspond. आप अभी सपोज मान लीजिए ए बी सी बोलेंगे तो देखो, मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी बोला, QRP. Second ए बी का angle. करस्पॉन्डिंग आ रहा है क्यू आर ना. सो QRP. ट्रायंगल क्यू आर, R. बी सी का करस्पॉन्डिंग आ रहा था पी आर. सो क्यू आर पी ठीक है चलेगा, क्योंकि आर पी एंड पी आर से. देन ए सी का आ रहा था क्यू पी, वो भी सही चलेगा, ए सी क्यू पी पी क्यू चलेगा, isn't it? So ABC is similar to QRP. So that is important. ABC is similar to corresponding लिखना है, and criteria yes, yes, yes. तीसरा देखो, तीसरा देखो, मुझे नहीं लगता कि ये देखो 4 5 6 है ना, एक ही का गैप आ रहा है 4 5 6. तो इधर देखो 2 3 2.7 होते हैं क्या? सिमिलर नहीं है सर. सिमिलर नहीं है. नहीं सर. क्योंकि 2 3 4 आ गया तो फिर से हम चेक कर सकते हैं, अभी तो मुझे नहीं लग रहा सिमिलर है करके. हाँ क्योंकि ये देखो 2 4 डबल आ गया, 3 6 3 6 डबल आ गया, बट इधर 2.7. हाँ 2.7 आ रहा है ना. सो ये तो ठीक है, जैसे दो साइड तो प्रोपोर्शनल है. 2 4 ठीक है, 2 4 डबल है, 3 6 सो वो भी डबल है. तो दो साइड तो ठीक है प्रोपोर्शनल है, बट तो तीसरा साइड तो प्रोपोर्शनल नहीं है ना. इधर तो आ रहे 2.7 आ रहे 2.7. सो 2.7 इधर 5, सो ये तो नहीं चलेगा. ये कहे तो इधर इधर 2.5 आना चाहिए था. सो 2.5 आएंगे तो 2.5 का डबल 5 तभी होते था. सो इट इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर. सिमिलर एक वाई एक्स्ट्रा हमेशा आ रहे हैं. देन फोर्थ वन देखो, इधर ऐसे है कि देखो एक एंगल दिया है, उसका दोनों बीच में साइड दिया देखो. तो एंगल तो सही में 70 70. अभी जो एंगल फॉर्म करने के लिए दो साइड्स था, उसका रेशियो देखो, इधर 2.5 इधर 5 and here it is 5 and इधर it is 10. so it is रेशियो में है, डबल आ रहे ना, so proportional है. Yes sir. so it is similar. ना आपको ट्रायंगल Yes, बोल yes, देना, right. जैसे अभी मैंने पहले का लिखा ट्रायंगल एल एम एन. फर्स्ट का नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं, बट जब सेकंड का लिखेगा ध्यान देना पड़ते हैं. सिमिलर टू एल एम मतलब जो 5 आ रहा था, सो इधर कौन सा आ रहा है 5. सो इधर 10 है, इधर क्यू आर आना चाहिए, नहीं है तो आर क्यू आना चाहिए, देख लेना. देन नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जो एंगल लिखेंगे एन एम एल, वो थोड़ा सा आपको आसान रहेगा.
एंगल क्या था देखो, जो ट्रायंगल एन एम एल, देखो एन एम एल, एन एम एल, पहले स्मॉल साइड देन एंगल देन बिग साइड. सो इधर पहले स्मॉल साइड देन एंगल देन बिग साइड, सो पी क्यू आर. वो थोड़ा आसान रहेगा लिखने में. ट्रायंगल पी क्यू आर. सो मैंने ऐसे लॉजिक यूज किया, पहले स्मॉल साइड देन एंगल देन लार्ज साइड, एन एम एल. सो इधर पहले स्मॉल साइड पी क्यू देन एंगल देन बिग साइड पी क्यू आर. सो ट्रायंगल एन एम एल is similar to triangle PQR. So criteria yes, A, S. Yes. ठीक है. अभी इसको आप अलग अलग वे लिख सकते हैं, जैसे यू कैन राइट इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. इसको आप एन एम एल को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऑर्डर चेंज करें एम एल एन. सो क्या हो जाएगा क्यू आर पी, राइट? Isn't it? ये मैंने मिडिल से शुरू किया, एम एल एन. इधर अभी सिर्फ नाम देख लेना, इधर ही देख लेना, एम एल एन. सो क्यू आर पी. अभी मैं लास्ट लेटर से शुरू कर रहे, एल एल एन एम. सो आर पी क्यू. ऐसे आप कैसे भी बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? अब यू कैन साइक्लिक, यू कैन change in the correct order, no problems. Did you understand? Yes, sir. Yeah.